एबे जानिबा let us know what is electrolysis. What is electrolysis? Let us know the definition. The process of decomposition of electrolyte. All of you look at the note. The process of decomposition of electrolyte in solution or in fused state by passing electric current is known as electrolysis. Okay, so the process of decomposition of electrolyte. Electrolyte decompose habo ता अर्थ electrolyte water रे dissolve होई जिवो भांगी जिवो in fused state or in solution by passing electric current हला is known as electrolysis. Electrolyte कोन हबो ना water रे डिसोसिएशन हबो जेतला हमें करंट देबा हला से प्रोसेस हम कहै छै कोन इलेक्ट्रोलिसिस. फॉर एग्जांपल हमें नेबा सपोज सोडियम क्लोराइड नै छै तो हमें जेतला हम इलेक्ट्रिक करंट देबा वेदर इन हमें सपोज बैटरी जे हमें करंट देबा ताले NaCl सॉल्यूशन भांगी जिवो Na+ और Cl- इन आयन फॉर्मेशन हबो हला कि. सो देखो कोन लिखा है जी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन गला. लेट अस नो इट्स एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में कौन करा ना गोटे फिगर फास्ट भल से देख गोटे बिकर नि जाइछि गोटे बिकर होछि कोन इन्सुलेटेड बिकर एटा ता भितरे दीटा कोन होइछि ना दीटा इलेक्ट्रोड दीटा रॉड गुडी रखा छै ताको हम कहै छै इलेक्ट्रोड कहबा लेफ्ट साइड रॉड एंड आल्सो द राइट साइड रॉड. दिस इज द लेफ्ट साइड रॉड एंड दिस इज द राइट साइड रॉड. ओके, so the left side rod is called the anode and the right side rod is called the cathode. Okay, so एठी कोन करा छै नेक्स्ट दीटी जाक रॉड को कोन करा हैछि ना गोटे बैटरी दिया हैछि बैटरी रे कनेक्शन करा दिया हैछि. सो बैटरी रे कनेक्शन करया फल रे कोन हबो इठा में नै छै NaCl सॉल्यूशन नै छै आ भीतर कोन नै छै ना NaCl सॉल्यूशन नै जाइछि. तो जितला में बैटरी कनेक्शन करिवा NaCl दा डिकम्पोज हो भांगी जीवो भांगी कोन हबो ना Na+ मूवमेंट हबो हमरो कोडे ना कैथोड मूवमेंट हबो Na+ ion is moved towards the cathode, minus ion is moved towards the anode. Okay, so this movement of ion is called the electrolysis. ये प्रोसेस को हम कोन कहबा ना इलेक्ट्रोलिसिस कहबा. बुझा बोला एडा तार एक्सप्लेनेशन. देखो कौन लिखा है बर्तमान पैराग्राफ. aqueous solution of electrolyte is taken in a glass vessel. What a glass vessel is, this is the glass vessel. Okay, next two metal plates are dipped in the solutions and upper end of the plates are connected to the two poles of the battery. This is the one pole of the battery, this is the another pole of the battery. These poles are connected to the upper ends are connected to the two electrodes. Okay, so aqueous solution of an electrolyte is taken in a glass rod. Two metal plates are dipped in the solution and upper end of the plates are connected to two poles of the battery. These metal plates are called electrode. This is called the electrode. This is also called the electrode. Okay, the electrode connected to positive pole of the battery is called the anode. एटा होछ हमर पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी. लेफ्ट साइड जो कनेक्शन है देखो पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी होछि लेफ्ट साइड कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड द एनोड कहबा को. एटा होछि फिगर देखो मु इंडिकेट करछि एटा होछि पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी. एटा होछि पॉजिटिव पोलटा पॉजिटिव पोल को जे कनेक्शन है ताको हम कोन कहउछे ना एनोड कहबा. सिमिलरली द electrode which is connected to the negative pole of the battery is called the cathode. So this electrode is called the cathode. Okay, so next is the electrode connected to positive pole of the battery is called anode and that connected to negative pole of battery is called cathode. Electric current enters the electrolyte through the anode and leaves the electrolyte through the cathode. Okay, एबे कोन हबो ना एटा जे हम बैटरी कनेक्शन करछे इलेक्ट्रिक करंट इनके आसीबो भला देखो फिगर इलेक्ट्रिक करंट ने आसीबो
इलेक्ट्रिक करंट आसीबो एमदी कोन एनोड बाटे आसीबो आ कोन हो ना कैथोड देकी हम रिमूव हबो हला तो इलेक्ट्रिक करंट enters the electrolyte through anode and leaves the electrolyte through the cathode. Electrolyte is dissociated into positive and negative ions. आ भितर जो अछि हमर कोन इलेक्ट्रोलाइट जो अछि NaCl नै छै ई कोन हबो ना डिवीजन हे जो NaCl भांगी के कहबो ना Na+ Cl-. So dissociated into ions. Electrolyte is dissociated into ions, that is a positive ion and also negative ion, and move to opposite charge. This is the positive pole, this is the negative pole. Okay, so here Na+ moves towards the negative electrode and Cl- moves towards the positive electrode. Opposite charge आड़े से माने कोन करिवे ना प्लस टा माइनस आड़े मूवमेंट करिवो आ माइनस आयन टा प्लस इलेक्ट्रोड आड़े मूवमेंट करिवो. ओके, सो माइनस आयन टा आसीबो हमर एपडा कोबडा आसीबो एनोड को आसीबो डिपोजिट हबो प्लस आयन टा जीवो कोडी की ना कैथोड आड़े जीवो. ओके, इलेक्ट्रोलाइट is deposited into positive and dissociated into positive and negative ions and move to the opposite charge electrode on the passing electric current. Cations are liberated at cathode. Cation कोन हबो ना कैथोड आड़े जीवो लिबरेटेड माने कैथोड आड़े जीवो ए ऊपर डिपोजिट हबो आ ऊपर सब डिपोजिट हबो कैटायन गुडा ताथ Na+ गुडा जीवो जायगिरी ए रॉड ऊपर एमती डिपोजिट हबो. ओके, liberated जहा डिपोजिटेड ताहा and anions or negative ions मध्ये एपडा आसीबो आसी के आ ऊपर डिपोजिट हबो कोडे ना एनोड ऊपर डिपोजिट हबो ए रॉड ऊपर ए टाइप डिपोजिट हबो. ओके, so the process of electrolysis can be described in the following manner. Bit 1 point कोन दे देखो electrolyte dissociated into positive and negative ions. एटा फर्स्ट पॉइंट हम जानि देले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होची. एनोड रे कोन घटे एट एनोड एनायंस बी एनोड रे हमरो एनायन गुडा को एनायन माने नेगेटिव चार्ज आयन गुडा होची एनायन जगह. ओके, से नेगेटिव चार्ज आयन गुडा को इथरे डिपोजिट हबो. At anode anions being liberated at anode and lose electrons, that means Cl- ion आसीबो आसिक को डिपोजिट हबो ए एनोड रे डिपोजिट हबो आ इलेक्ट्रॉन गोटे लॉस करियो. Cl- ion डा एनोड रे आसी डिपोजिट हबो गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करियो. लॉस करी से कोन हबो Cl- अछि गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस कला परे से खाली ओनली Cl हे जिवो आ Cl ला केवल कोन हबनी एकुडिया सी क्लोरीन टा केवल Cl अवस्था रहेनी सी अगेन आवर Cl2 को चेंज हे जिवो. ओके, सो लेखिस एट एनोड anions being liberated at anode and lose electrons and get converted into neutral atom. Similarly, a neutral atom may be contribute with another atom of to form a molecule. जो हम कहली Cl- टा गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करी की केवल Cl हबो आ Cl ला कोन हबो आउट क्लोरीन सहित मिसी की Cl2 हे जिवो. जेतु क्लोरीन टा Cl अवस्था रे रुहेनी से Cl2 स्टेट रे रहे. से Cl2 स्टेट टा कोड रहबा हमर ना ए इलेक्ट्रोड डिपोजिट हेबियो. नेक्स्ट कैथोड सिमदी कोन हबो कैथोड रे एट कैथोड कैटायंस प्लस आयन हम कोछ कैटायन माइनस आयन हम कोछ एनायन. कैटायन माने की Na+ आयन टा ए कैथोड डिपोजिट हबो. Cations being liberated at cathode gain electrons. तातो हमर Na+ को हबो Na+ means इलेक्ट्रॉन सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस कर दैछि से गोटे इलेक्ट्रॉन को गेन करिवो. गेन करी करी Na+ सहित गोटे इलेक्ट्रॉन गेन हला बेले कोन हबो खाली Na हे जिवो से हमर कोडे ना कैथोड रासी की डिपोजिट हे जिवो कैथोड रॉड रे डिपोजिट हबो. ओके, सो कैथोड रे एमति घटिला एनोड रे हमर एमति घटे. ए प्रोसेस टा हम कहू दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. हमर नेक्स्ट पेज रे देइछि कोन ना केमिकल रिएक्शन किन घटे. बर्तन हम नेक्स्ट पेज देखिबा सेटरे केमिकल क्लोरीन टा किन डिपोजिट होउछि आ सोडियम टा किन डिपोजिट होउछि. नेक्स्ट पेज शेयर कर. देखो ए पेज रे कोन देइछि
ना एग्जांपल्स देसी NaCl डिकंपोज हे कोन हेची फर्स्ट भांगी छि Na प्लस प्लस Cl माइनस आसी ओके कैथोड रे कोन होबे कैथोड टा कोडा हमरो राइट साइड टा होची कैथोड राइट साइड रे कोन दउतला Na प्लस टा राइट साइड दउतला सो राइट साइड रे से कोन होबा ना गोटी इलेक्ट्रॉन गेन करिवो Na प्लस गोटी इलेक्ट्रॉन गेन करिके कोन हेची Na प्लस माने कोन रे सोडियम टा गोटी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देछि इलेक्ट्रॉन गोटे लॉस करता हम गोटी इलेक्ट्रॉन देबा ता त कोन आबसी केवल Na हे जिवो सो एडा हम कहछि कोन ना लिबरेटेड एट कैथोड से लिबरेट हबो ता तो खाली सोडियम टा कैथोड रे डिपॉजिट हे जिवो कैथोड रॉड ऊपर डिपॉजिट हे जिवो सेंदी एनोड रे कोन हबो Cl माइनस एनोड रे कोन अछि Cl माइनस आसी हमर लेफ्ट साइड आसी Cl माइनस टा लेफ्ट साइड रॉड टा कोडा एनोड कहउसे Cl माइनस also गोटी इलेक्ट्रॉन से अधिक आसी ता पाखरे आ सी कोन करबो ना गोटी इलेक्ट्रॉन लॉस करबो Cl माइनस माइनस E प्लस करी कोन Cl हबो आ क्लोरीन टा तो खाली Cl अवस्था रहेनी से आउड क्लोरीन से तो सांग होइसे कोन Cl2 होई जिवो सो इति एडा होछि कोन ना लिबरेटेड एनोड हला तो सोडियम इज लिबरेटेड एट कैथोड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड प्लस आयन टा माइनस इलेक्ट्रोड आडे गला माइनस आयन टा प्लस इलेक्ट्रोड आडे आसी जमा हला तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वास सॉल्यूशन ऑफ NaCl टा हमर इंदी प्रोसेस टा टोटली देज ए ऊपर रिएक्शन जहा ए इक्वेशन जहा ए तळ रिएक्शन भी लेका आगा ओके नेक्स्ट जीबा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वास सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की बुझ देखो कॉपर सल्फेट के कोन हुए कॉपर सल्फेट भांगी कोन हबो ना CuSO4 अछि से हमर दबा भांगी कोन हबा आयन ना Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस कॉपर सल्फेट मध्ये गोटे कोन ना कॉपर सल्फेट मध्ये होची गोटे इलेक्ट्रोलाइट टा से भांगी दुए Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस जेतो वाटर भीतर भांगुची H2 भांगी मध्ये कोन दबा H प्लस प्लस OH माइनस हेले एडे एनोड रे कोन घटे आ कैथोड रिएक्शन कोन घटे एट कैथोड Cu2 प्लस कोन आबो के एनोड कैथोड टा होची राइट साइड होची कैथोड रॉड टा राइट साइड होची कॉपर टा दीटा इलेक्ट्रॉन लॉस करिची जैसे दीटा इलेक्ट्रॉन लॉस करिची ताका हम केतरा इलेक्ट्रॉन देले सी न्यूट्रल हबो ना केवल दीटा इलेक्ट्रॉन देबा सो Cu2 प्लस आयन कैथोड रे जाई कोन करना दीटा इलेक्ट्रॉन गेन करिवो गेन करिकरी कोन आइ जबो ना ओनली Cu हबो आ ए Cu डा कोन हबो Cu डा डिपॉजिट हे जो कोडे ना कैथोड रे Cu डा डिपॉजिट हबो हैला दिस इज द कैथोड रिएक्शन एनोड रे कोन होय देखो एट एनोड Cu एनोड गोस इनटू सॉल्यूशन फॉर्मिंग Cu प्लस आयन Cu टा इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गोस इनटू द सॉल्यूशन अच्छा Cu रे मते कोन हबो एठे दे निबिले एट एनोड रे हमर देखो इन देओ SO4 2 माइनस आयन टा ए केमिकल रॉन्ग अछि SO4 2 माइनस आयन टा कोन हबो ना एनोड रे डिपॉजिट हबो SO4 2 माइनस ते लेखिन SO4 2 माइनस आयन टा सो आकार में डिपॉजिट हबो हला ए प्रोसेस तो हम कहै कोन ना इलेक्ट्रोलिसिस बुझा पला समस्त इलेक्ट्रोलिसिस कोन आ थोड़ी कोइ रिकॉल कर दे भल से बुझो गोटी इलेक्ट्रोलिटिक टैंक निया थिबो से इलेक्ट्रोलिटिक टैंक मध्य कोन हबो ना दीटा रॉड हमें डिपॉजिट करथिबा वन इज एनोड लेफ्ट साइड रॉड को कहू एनोड राइट साइड रॉड हम कोन कहबा कैथोड कहबा ताकू एनोड को हमें कोन ना बैटरी एनोड और कैथोड को बैटरी सहित कनेक्शन करा हिथिबो जतला समय हमें बैटरी स्विच ऑन करिबा सेतला समय कोन हबा ना इलेक्ट्रोलाइट जो हमें सपोज हमें लइचे लूण नइचे NaCl नइचे से NaCl ला भांगी जीवो भांगी कोन हबा ना Na प्लस आ Cl माइनस हबो Na प्लस आयन टा कोडी आसीबो ना राइट साइड आसीबो कैथोड को आसीबो किमदि हबा ना Na प्लस आयन टा गोटी इलेक्ट्रॉन लॉस करी से खाली Na हबो Na आकार रे डिपॉजिट हबो सिमिलरली Cl माइनस आयन लेफ्ट साइड आसीबो आसी गोटी इलेक्ट्रॉन
सॉरी Na+ टा गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करी Na आकार डिपोजिट हो आ Cl- आयन टा लेफ्ट साइड आसीबो गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करी कोन हबो ना खाली क्लोरीन हबो क्लोरीन टा आउट क्लोरीन संग होई कि Cl2 हबो एई कोन ना एनोड रे डिपोजिट हबो ओके ए टोटल प्रोसेस तो हम कहूचे इलेक्ट्रोलिसिस जोटा को हमें ओडिया रे कहबा वैद्युतिक विश्लेषण हला नेक्स्ट जीवा इलेक्ट्रोलिसिस हला व्हाट इज फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ओके देखो एटा 2020 रे क्वेश्चन टा आसीबार थिला फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ए क्वेश्चन टा आसीनी 2018 19 रे भी आसीनी ओके ये कोन हबा ना 2021 रे फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जोडे कंफर्म लिस्ट ही अछि व्हाट वी एक्सपेक्ट हम जा एक्सपेक्ट करूचो कंफर्म लिस्ट अछि सो दिस इज ए लॉन्ग क्वेश्चन कोन आसीबो स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आउ ता रिलेटेड गोटे प्रॉब्लम फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के देथिले ना माइकल फैराडे हला माइकल फैराडे का द्वारा माइकल फैराडे को हम कहजे फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लेट्स से दीटा तांकर दीटा लॉ अछि फैराडेस फर्स्ट लॉ एंड आल्सो फैराडेस सेकंड लॉ ओके फैराडेस फर्स्ट लॉ कोन जानिबा ता रिलेटेड प्रॉब्लम अछि फैराडेस सेकंड लॉ अछि ता रिलेटेड प्रॉब्लम अछि ओके और फैराडेस फर्स्ट लॉ रो एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम फैराडेस सेकंड लॉ रो एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉब्लम बर्तमान हम जीवा देखिबा स्टेटमेंट कोन सो इलेक्ट्रोलिसिस हम ऊपर पढिले से इलेक्ट्रोलिसिस नेगिरी ही फैराडेस लॉस हेछि इलेक्ट्रोलिसिस रे कोन कहला ना हम जब बैटरी करंट देबा फल रे सोडियम NaCl टा भांगी कहला ना Na+ और Cl- से दी जाक रॉड रे डिपोजिट हैला तो फैराडेस लॉ फर्स्ट लॉ टा ता ऊपर बेस करी हेछि जेते हमें अधिक अमाउंट ऑफ करंट देबा अधिक अमाउंट ऑफ करंट अधिक समय पे देले अधिक सब्सटेंस से रॉड जारे डिपोजिट हबो एटा हो हमर फैराडेस फर्स्ट लॉ ओके सो देखो कोन फर्स्ट स्टेटमेंट कोन लिखा हेछि माइकल फैराडे स्टडीड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कागा भितरे chemical change observed at the electrode and the quantity of electricity passed through the solution ता भितरे कोन इलेक्ट्रिसिटी पास कले से सॉल्यूशन भितरे कोन केमिकल रिएक्शन घटे आ कोन ना केमिकल चेंज कोन घटे आ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केते अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी देले केते समय पन देले कोन केमिकल रिएक्शन घटे सेटा माइकल फैराडे स्टडी करथिले the result of his investigation is expressed in two laws तांकर से जहा स्टडी करथिले माइकल फैराडे ताको दीटा लॉ द्वारा से स्टडी करछन्ते बर्तमान हमर नेक्स्ट पेज रे अछि व्हाट इज फैराडेस फर्स्ट लॉ देखिबा अब नेक्स्ट पेज देखो फर्स्ट लॉ देखो फर्स्ट लॉ कोन कहिछ ना the mass of the substance liberated माने डिपोजिट कहा बिले हैला the mass of the substance liberated at the electrode during the process of electrolysis is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte mass of the substance liberated at the electrode केते substance deposit हबो गोटे इलेक्ट्रोड जो रॉड केते अधिक अमाउंट ऑफ substance deposit हबो सेटा इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होछि कोइति कहला ना माइकल फैराडे कहले एटा फैराडे का फर्स्ट कर डेफिनेशन जेते अधिक करंट प्रोवाइड हबो सेते अधिक अमाउंट ऑफ substance हमर रॉड जारे डिपोजिट हो सब्सटेंस माने सोडियम लेबो आ क्लोरीन डिपोजिट हम देखते तो W is the mass of the substance हमने मास
Badauni sir. Liberated the electrode and Q is the quantity of electricity passed through the electrolysis. Then according to Faraday's first law, W is directly proportional to Q. केते अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होबा सेटा करंट ऊपर डिपेंड करूछ सेति में लिखा हला W is directly proportional to Q. सो किंतु Q माने Q डाउज करंट जो इन कूलम रे लिखा है ओके. सो Q is equal to Q is equal to हम जानि से Q equal to CT. C माने लिखा है C is equal to current in ampere और T माने टाइम इन सेकंड. करंट यूनिट होच एम्पियर. Q is equal to CT जोटा कहूचे करंट इन C माने होच करंट इन एम्पियर और T माने टाइम इन सेकंड. सो एम्पियर इनटू सेकंड इज इक्वल टू कूलम हमें कहबा अर्थात C और T रो गुणनफल को हम कहूचे ना कूलम. सो हम कौन लिखता है where C equal to current in ampere और T equal to time in second. when then कोई ना W is directly proportional to Q जगह हम लिखिए ना W direct proportional to लिखा है W is direct proportional ना CT और proportionality symbol उठिले हो जो W equal to Z into CT है जो. ओके कौन लगला Z into CT जोटा proportionality constant Z बसिला proportionality symbol उठिला पर. सो Z equal कौन रहता है ना Z is equal to W by CT है where Z is a constant known as electrochemical equivalent. एटा हम का कहबा Z टा होची proportionality constant electrochemical equivalent कहबा. electrochemical equivalent का अर्थ ECE electrochemical equivalent. अच्छा ठीक है देखिलो Z is equal कौन आसला बेले W by CT आसला. जदि C माने करंट इन एम्पियर T माने टाइम इन सेकंड. अच्छा जदि C is equal to 1 एम्पियर हबो T equal to 1 सेकंड हबो. C equal to 1 एम्पियर और T equal जदि 1 सेकंड हुए ताल हबो एम्पियर सेकंड C और T गुलो है 1 हे गला. सो Z equal है Z equal W हो जो C equal to 1 एम्पियर और T equal 1 सेकंड हेले Z equal हुए W हो जो नहीं. सो हमरा आसला if C is equal to 1 एम्पियर देखो लिखा है and time T equal 1 सेकंड then W equal to W equal to Z. अर्थ W होची मास ऑफ द सब्सटेंस Z होची इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हेले मास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट W सहित मास ऑफ द सब्सटेंस सहित समान हे गला केतला समय रे ना जेतला 1 एम्पियर ऑफ करंट passed through the electrolyte for 1 second. 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकंड पे जेतला प्रवाहित हबो सेतला Z इक्वल कोन हुए ना W हुए. एठी हमें कहबा 1 एम्पियर C और T C माने 1 एम्पियर आनीचे और T माने 1 सेकंड नीचे. सो 1 एम्पियर और 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम. ओके 1 कूलम. तो 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इज इक्वल टू W हला. तो लिखा है therefore कौन लिखी देखो जैसे therefore electrochemical equivalent जोड़ा हमको EC माने कौन ताले therefore electrochemical equivalent of a substance is defined as mass of the substance liberated when 1 ampere of current is passed through the electrolyte for 1 second. Z equal to W तको का इंग्लिश डेफिनेशन मीनिंग है W equal to जो Z लिखा है जी तार पूरा लंबा डेफिनेशन ना कौन
ना जेड मान होची इसी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहबा सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज electrochemical equivalent of a substance is defined as mass of the substance liberated when 1 ampere of current passed through the electrolyte for 1 second हला गोटे एम्पीयर ऑफ करंट जतले गोटे सेकंड में प्रवाहित होला जति की सब्सटेंस डिपोजिट होला ताका हम कहउछे EC. It can also be defined as mass of the substance liberated by a passage of 1 coulomb of electricity. आम C कहउछे कोन C होची 1 एम्पीयर नेले T इक्वल 1 सेकंड नेले तो 1 एम्पीयर मास इक्वल कोन 1 कूलम भी हो सो 1 कूलम इक्वल कोन लिखा है देखो 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पीयर इनटू 1 सेकंड एटा होची इलेक्ट्रिसिटी रो यूनिट टा होची कोन ना हमरो एम्पीयर कहबा कूलम भी कहबा आ तार अछि कोन बिगर यूनिट फाराडे भी अछि देखो फाराडे जोड़ा हम कहउछे F कहबा माइकल फाराडे को नाम अनुसार ही छी फाराडे F इज द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो 1 फाराडे इक्वल केते ना एटा परीक्षा कर 1 फाराडे इक्वल 6500 कूलम 96500 कूलम को हम कहउछे 1 फाराडे सो इट हैज बीन अच्छा ता तळ लाइन मुडी बुझी दोची आमे ऊपर देखिले कोन 1 कूलम ऑफ चार्ज जतला प्रवाहित होउची सेतला समय मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड इज इक्वल टू कहउची कोन ताको हम कहउछे W जोड़ा हम ECL एक्सप्रेस करले इज कोइ जतला 6500 कूलम चार्ज प्रवाहित हबो सेतला केते सब्सटेंस डिपोजिट हबो इलेक्ट्रोड रॉड रे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिट हबो परीक्षा कर देखा जाइछि 6500 कूलम चार्ज प्रवाहित होले 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस से रॉड रे डिपोजिट हुए 6500 माने कोन 6500 कूलम जहा 1 फाराडे ताहा ओके देखो कोन लिखा है डेफिनेशन ना इट हैज बीन फाउंड दैट मु डेफिनेशन पढुची इट हैज बीन फाउंड दैट by passing 1 Faraday by 96,500 coulomb of electricity through the electrode 1 gram equivalent of substance is liberated 1 gram equivalent एटी हम बुझा चाहिबी 1 ग्राम इक्विवेलेंट माने कोन 1 ग्राम इक्विवेलेंट जा बिले जहा पिले इक्विवेलेंट मास ताहा गोटे सब्सटेंस रा इक्विवेलेंट मास जहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ताहा इक्विवेलेंट मास कि जानिबा ना इक्विवेलेंट मास के सुनो भल से इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी मनला हमें फर्स्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ी देइछे इक्विवेलेंट मास के कैलकुलेशन करिवार इक्विवेलेंट मास इज इक्वल कोन सूत्र एटॉमिक मास बाय वैलेंसी એટલે ग्राम इक्विवेलेंट मास कोन ना इक्विवेलेंट मास के तो ग्राम रे एक्सप्रेस करिवा ताको हम कहउछे ग्राम इक्विवेलेंट मास सो सपोज मनर म कहबे सोडियम र इक्विवेलेंट मास केते सोडियम र एटॉमिक मास केते 23 23 तार वैलेंसी 1 सो इक्विवेलेंट मास ऑफ 23 बाय 1 इक्वल केते 23 सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इक्वल केते 23 ग्राम एली कहबा हला सो एटा कोन लिखिछि ना जतला 6500 कूलम चार्ज प्रवाहित हबो सेतला समय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हबो हेले 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इक्वल केते ग्राम ना 23 ग्राम कहबो सिन मु कहि सिल्वर कहबी सिल्वर होची Ag को हम कि लिखो छी Ag प्लस लिखा होची Ag प्लस वाला तार वैलेंस होची 1 Ag रो एटॉमिक मास होची 1 जे 108 सो इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag सिल्वर रो इक्विवेलेंट मास केते ना 108 इक्विवेलेंट मास इक्वल एटॉमिक मास वैलेंस 108 बाय 1 इज इक्वल टू 108 ग्राम हला देखो कोन लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ टा फॉर एग्जांपल से लेजी फॉर एग्जांपल ऑन पासिंग 1 अच्छा 6500 कूलम प्रवाहित होले 1 ग्राम डिपोजिट होजी 1 कूलम प्रवाहित होले केते ग्राम डिपोजिट होबो ना पर पासिंग 1 फैराडे 6500 कूलम दा 1 फैराडे था
So for example, on passing 1 Faraday or 6500 coulomb of the electricity through the silver nitrate solution, okay, now 1 gram equivalent of silver is deposited. 1 gram of 1 gram equivalent of silver, look at this, 108 gram silver deposited. So mass of the substance liberated by passing 6500 coulomb of electricity equal to 1 gram equivalent. अच्छा एठी देखो लिखा है 6500 कूलम प्रवाहित हेले 1 ग्राम डिपोजिट होची 1 कूलम प्रवाहित हेले ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट जेतला 1 कूलम प्रवाहित हबो कोन हबो 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाई 6500 हे जो हला बुझबाला लाइन ना जेतला 6500 कूलम चार्ज प्रभावित होची सेतला सब्सटेंस के डिपोजिट होची ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट जेतला 1 कूलम चार्ज प्रभावित हबो केते डिपोजिट हबो ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाई 6500 एडा हम कहू कोन ना हेले 1 कूलम माने कोन हम जान से 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में प्रभावित होता हम कहू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सो एडा हम कह 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाई 6500 का हम कहू छे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और तक हम कहबा ECE कैपिटल लेटर ECE so ECE is equal to chemical equivalent by ECE equal कोन chemical equivalent by 6500 chemical equivalent को न लगा जोड़ा chemical equivalent जा equivalent mass ता है हैला so ECE is equal to chemical equivalent by 96,500 hence ECE of Z or ECE or Z ECE रहा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रहा Z रहा so इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू केते ना 108 बाई 6500 एता आसिला ना 0.0011 हमरा हला ये होची दिस इज द ऑल अबाउट फैराडेस फर्स्ट लॉ भला बातडी सुना मुडी रिकॉल कर दउ फर्स्ट लॉ डाको ए चारटा लाख इलेक्ट्रोलिटिक सेल नि आइथियो सेडा को सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होबा ताको हला सो द सेकंड लॉ कोन देखो दिए when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series रे कनेक्शन हुए हमरा देखो लिचु माला गुडा सीरीज रे कनेक्शन हुए हला ना सो एटा when same quantity of electricity passed through the different electrolytes connected in series mass of the different substance liberated at the electrode are proportional to the equivalent mass माने फर्स्ट गोटे इलेक्ट्रोलिटिक सेल नेला फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल नेला सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल नै तो थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल नै तो माने सेल माने कोन मु जिन इलेक्ट्रोलिसिस रे हम जिन गोटे देखले ने सेल से टाइप रो सेल दि तीनटा मनकर कनेक्शन कराइ छै तीनटा परस्पर लागि लागि अछि आ गोटे बैटरी अछि हला तो से बैटरी जतला हम करंट प्रवाहित हबो जो इलेक्ट्रोड रॉड जा भीतर बुडी की थिबो से कहै छै कोन जति के सब्सटेंस डिपोजिट हो से रॉड रे तार इक्विवेलेंट मास से तो समान सपोज हम ने आइछि लेख लिखि छी कोन let there be 3 voltmeters containing solutions of copper माने तीनटा सेल ने आइछि पुरो जी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ने आइछि आ ओडा सिल्वर नाइट्रेट ने आइछि आ ओडा ने कोन आइछि एसिड डिल्यूटेड वाटर माने सल्फ्यूरिक एसिड ने आइछि तीनटा सेल ने आला कोन ने आला कॉपर सल्फेट माने CuSO4 सॉल्यूशन ने आइछि आ गोटे सेल ने आइछि AgNO3 ने आइछि आ ओडा परे H2SO4 ने आइछि अल ए तीनटा कोन करा आइछि ना कनेक्शन करा आइछि सीरीज आकार रे हमें कनेक्शन करिছে अच्छा किंतु करंट कोन समान करंट प्रवाहित होछि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through the electrolytes for a given time जतला तीनटा जगह हम कनेक्शन कर देले समान करंट प्रवाहित करिबा it is found that mass of the copper हेले कोन डिपोजिट हबो हमें मन जदी कॉपर सल्फेट नै छी हमर कैथोड रे कॉपर डिपोजिट हबो सिल्वर नाइट्रेट नै छी कैथोड रे सिल्वर डिपोजिट हबो
हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 नियाइजे केथोड रे हाइड्रोजन डिपोजिट हो ए जो कॉपर डिपोजिट हैला सिल्वर डिपोजिट हैला कि हाइड्रोजन डिपोजिट हवा एटा केतिक डिपोजिट हबो सेटा तार इक्विवेलेंट सेमानकर इक्विवेलेंट मास सहित समान बोली कहिछि इतर समय हम कोन समान क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करिवा it is found that masses of copper silver and hydrogen liberated at the respective electrode are in the ratio of their equivalent masses हैला सेमानकर इक्विवेलेंट मास रा रेशियो सहित समान किमति सेटा हमर नेक्स्ट पेज रे देछि देखिबा आबे देखो एबे नेक्स्ट पेज देखो कौन ना नेक्स्ट पेज शेयर कर रे हां देखो 10 देखो फास्ट हम नेबा हम मनर तीनटा इलेक्ट्रोलिक सेल नै छी सपोज नि आइछि कॉपर और कॉपर सल्फेट नि आइछि कॉपर सल्फेट हम नै छी सिल्वर नाइट्रेट नै छी H2SO नै छी बर्तमान फास्ट दिटा सेल हम सपोज नै छी कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट सो फारडे सेकंड लॉ आंसर कोन कहउछि मास ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड हमर कॉपर डिपोजिट होबा केथोड रे सिल्वर डिपोजिट हो मतलब के आउट साइड रे सिल्वर डिपोजिट हो सो मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड इक्वल टू कोन हो इक्वल मास ऑफ कॉपर बाय इक्वल मास ऑफ सिल्वर अर्थात केते कॉपर डिपोजिट हैला तार इक्वल मास से समान केते सिल्वर डिपोजिट हैला तार इक्वल मास से समान So this law becomes useful in determining the equal mass of the substance. अच्छा again देखो कौन लिखा है ना इधर हमर अछि mass of copper deposited by mass of silver deposited is equal to equal mass of copper माने कोन ऊपर जाय equal mass of copper equal कोन mass of the copper deposited by 96,500 equal mass of silver माने कोन ना mass of silver deposited by 96,500 एटा कोडे फर्स्ट लॉ अछि एटा सो बर्तमान 96,500 9700 कटि गला कोन आसला ना mass of the copper deposited by mass of silver deposited is equal to कोन आसीबो ना equal mass of copper by equal mass of silver ओके सो केते सब्सटेंस डिपोजिट हो कॉपर किबा सिल्वर तार इक्वल मास ऊपर डिपेंड करूछि ये होछ हमर कोन ना दिस इज फैराडेस सेकंड लॉ ओके सो फर्स्ट लॉ सरिला एटा होछ सेकंड लॉ सरला सेकंड लॉ छोटोडा हला खाली गोट एती जिंस मन रख कोन कहली मनगर से कहि तीनटा इलेक्ट्रोलिक सेल और डिफरेंट इलेक्ट्रोलिक सेल जतला सीरीज रे कनेक्शन हबो सेतल आ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जतला प्रवाहित हबो सेतल समय कोन हबो ना मास ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड इक्वल मास ऑफ कॉपर बाय इक्वल मास ऑफ सिल्वर सिन मनर हम कहबा कॉपर सल्फेट सहित मननबा हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 थिबो से जगह कोन करि परिबा मास ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड by mass of hydrogen deposited is equal to equal mass of copper by equal mass of hydrogen से जगह एमती हे जो बुझिला ये होछि फैराडेस सेकंड लॉ ओके सो व्हाट स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट इज फैराडेस फर्स्ट लॉ एंड व्हाट इज फैराडेस सेकंड लॉ हैला आर फिगर रा देनी एथरे नोट रे हम लिखि से पर लिखिबा जतर नोट कॉलेज लिखिबा जतर फिगर रे करबा ए बुक रा पेज डाटा त फिगर देनी नेक्स्ट जीवा सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फैराडेस फर्स्ट लॉ एंड आल्सो फैराडेस सेकंड लॉ देखो कोन प्रॉब्लम दैछि ए टिके मन रख पिले फैराडेस फर्स्ट लॉ इज कोन W is direct proportional to Q W is equal to Z into Q W equal to Z in Q माने कोन IT ओके सो देखो और Z is equal to W by IT
हला और जेड इक्वल ई बाई लास्ट कोन आसला जेड इक्वल ई बाई 96500 एटा फास्ट लॉ हला जेड इक्वल कोन आसला जेड इक्वल टू ई बाई 96500 कोन क्वेश्चन नंबर 1 लिखि छी व्हाट करंट स्ट्रेंथ करंट माने आई रे पचार छी करंट आसला जान तुम आई हला व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर will be required to liberate 10 gram of iodine from Ki solution in 1 hour. आर मीनिंग कौन बुझ Ki माने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन अछि से पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन हमर थिला हम कोन करछे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मध्ये कोन होइछि ना इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होउछि से कहछि केते परिमाणर आयोडीन डिपोजिट हब इलेक्ट्रोड रॉड रे हला कोन लिखि देख पिला आंसर ना W होउछि केते देला हियर गिवन डाटा इज W इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ आयोडीन दिस हला अच्छा हमें जानि जे फार्मूला कोन W इक्वल टू Z into CT ए फार्मूला हमें जानि जे फर्स्ट लॉ रो जेहेतु हमें जानि जे कोन W इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q W इक्वल टू Z into Q W इक्वल टू Z into Q माने कोन IT और CT सो W इक्वल टू Z into CT एले 50 हम कोन C 50 करंट इन एम्पियर करंट माने C और I भी कहले हबो सो C इज इक्वल टू कोन हमरा आसला W बाई ZT एटा हमरा आसला C इक्वल टू W बाई ZT हेले Z माने कोन Z होजी कोन EC इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट माने कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z को EC माने कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास था पोटेशियम आयोडाइड इक्विवेलेंट मास देजी केते 127 हमको ऑलरेडी दे दीच हला सो Z इक्वल कोन Z इक्वल E by 96500 Z दे देला केते 127 by 96500 केते आसे हमरो Z इक्वल E by 96500 ना 127 by 96500 दे देला सो तार वैल्यू पके दियो डबल वैल्यू ए जगह तार वैल्यू पके दियो डबल वैल्यू दे दीजी केते 10 दे दीजी Z रे वैल्यू हमरो ऊपर आसला केते 127 by 6500 आइला E रो वैल्यू दे दीजी केते 1 आवर माने केते 36 सेकंड दे दीजी ए सब जार वैल्यू पकेला पर केते आसीओ आई C रो वैल्यू केते आसीओ ना 2.11 आसीबो ओके भलसे सुन आउथर कहूची एटे कोन करियो ना W रो वैल्यू देइची एटे गोटे सूत्र होची Z इज इक्वल टू E by 6500 एटा होची गोटे सूत्र Z इज इक्वल टू कोन रे E by 6500 एला माने Z इक्वल कोन W by IT सोडा मिमति लिखि परिबा W by IT इज इक्वल टू E by 6500 भला सुन तुम कोन कहूची Z इक्वल टू E by 96500 Z माने कोन W by IT इक्वल टू E by 96500 W रो वैल्यू देइची C रो वैल्यू 85 E रो वैल्यू दे दीची E रो वैल्यू भी दे दीची केते 127 दे दीची बाय 6500 पके देले जो कोन आसीबो ना हमरो C रो वैल्यू ऑटोमेटिक आसीबो हला एटा हम कोन से फारडेस फास्ट लॉ रा ये गोटे प्रॉब्लम नेक्स्ट जीवा सेकंड प्रॉब्लम कोन देइची ए करंट ऑफ 3 एम्पियर माने C इक्वल दे देला 3 एम्पियर दे देला pass through AgNO3 solution for 20 minutes time t दे देला केते 20 मिनट दे दीची डिपॉजिटेड डबल रो वैल्यू भी दे दीची W इक्वल 4 ग्राम दे दीची सपोज व्हाट इज EC ऑफ सिल्वर माने Z डाइट 50 हैला से गोटे फार्मूला Z इज इक्वल टू E by 6500 और W by IT is equal to E by 6500 एक फार्मूला भल से सुनो था फारडेस फास्ट लॉ होची कोन
ना W by IT और W by CT इज इक्वल टू E by 6500। ये जो फैक्टर W रो वैल्यू देथियो कोडा I रो वैल्यू देथियो कोडा T रो वैल्यू पचारथियो ए माने वैल्यू कोडा गोटे वैल्यू जोड़ा जोड़ा पचार थाई पारे। ओके सो एडी मशीन कोन करछि ना C रो वैल्यू दे देला केते दी C रो 3 एंपियर दे दीछि T इक्वल देछि केते 60 हमें 20 मिनट कहछि मिनट और सेकंड रे प्रकाश करे 60 रे मल्टीप्लिकेशन कर दो W वैल्यू 4 ग्राम दे दीछि कोन आसला W इक्वल Z इनटू CT एटा हम जानि से और Z इक्वल कोन आसला W बाय CT W इक्वल केते 4 ग्राम दे दीछि 4 बाय C रो वैल्यू केते 3 ग्राम दे दी 3 एंपियर आछि और T हो जे केते 20 इनटू 60 सो केते आसला हमरा वैल्यू आछि केते ना 0.000। ओके ये होची फारेस्ट फर्स्ट लॉ रो सेकंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट जीवा कोन थर्ड प्रॉब्लम देखथिले थर्ड प्रॉब्लम कोन लिखिसी ना 0.2964 gram of copper was deposited on passage of current 0.5 ampere for 30 minutes through a solution of copper sample calculate the mass of the copper। एडा हम कोन पचाछि मास टा पचाछि ताफरे W पचाछि तमे सिनली जानि परिबो केवल गोटे फार्मूला पकेयो कोन Z इक्वल टू W बाय CT ए फार्मूला पकेले सब आसीबो। ओके किंतु Z इक्वल फार्मूला कोन ना Z इक्वल टू E बाय 96500 एडा पकेयो फार्मूला पकेयो हला पकेले आसीबो। ओके बर्तमान हम नेक्स्ट पेज की जिबा सेकंड लॉ प्रॉब्लम कोन से देखिबा देखो नेक्स्ट पेज देखो अंकिता प्लीज शेयर द नेक्स्ट पेज। कॉली सर ओके देखो सेकंड लॉ कोन देछि कैलकुलेट इसी हां एटा फर्स्ट लॉ प्रॉब्लम गला जति थिला एबे सेकंड लॉ प्रॉब्लम होछि कोन हारे सेकंड लॉ होछि कोन W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2 केते के सब्सटेंस इलेक्ट्रोड डिपॉजिट हेबो सेटा तार इक्विवेलेंट मास से समान केते के सब्सटेंस डिपॉजिट हो माने W कहूचे आ इक्विवेलेंट मास कोन E कहूचे ता अर्थ हम कोन W1 मनर दीटा इलेक्ट्रोड सेल ने आइछ हम देखा W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2 सिन तीनटा ने आइछ W1 by W2 इक्वल E1 by E2 इक्वल टू इन लिखा W2 by W3 एटा देखो सेकंड लॉ कोन सेकंड रो प्रॉब्लम ना calculate EC of copper and Ag electrochemical equivalent of copper and Ag पचारची when that of hydrogen is देती अच्छा एटा कोन अछि calculate EC of copper and Ag हाइड्रोजन रा देदी छि इक्विवेलेंट मास देदी छि कॉपर और Ag रा पचारची तार थले तीनटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल अछि हाइड्रोजन अछि कॉपर अछि आ Ag नि है तीनटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीरीज रे कनेक्शन है छि बर्तन हम का को ये करबा जे कोन से दीटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमें नेबा EC of hydrogen by EC of Ag equal कोन equal mass of hydrogen by equal mass of Ag हेले EC of Ag माने कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट माने कोन EC of Ag EC of इठा मानिबा EC of Ag आनिबा तार ए चारटा वैल्यू जे देछि ए चारटा वैल्यू रो हमें EC of Ag ए वैल्यू आनिबा EC of Ag माने कोन किन आनिबो ना सब जार वैल्यू पुट कर दबा कोन ना EC of hydrogen हम कोन दे दिछि इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन माने तीनटा वैल्यू दे दिछि EC of H2 by EC of Ag इक्वल मास ऑफ H2 by इक्वल मास ऑफ Ag हेले ए सब जारा वैल्यू पुट कर देछि परी के लास्ट वैल्यू केता आंसर ना 0.01122 सिन EC of कॉपर भी आनी परिबो सिंदी कोन EC of हाइड्रोजन आई मीन तबे फार्मूला लिखि परिबा EC of हाइड्रोजन by EC of कॉपर इज इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन by इक्वल मास ऑफ कॉपर इन लिखि तार पुट कर काई हम इक्वल मास के नानी कॉपर एटॉमिक मास दे दी से इक्वल मास कैलकुलेशन करि परिबा परी तार वैल्यू केता आंसर
31.77 এটা তোমার আর এক্সপ্লেনেশনটা তুমি ওয়ার্কআউট করলে অটোমেটিক বুঝি পারিব ওকে সিনে নেক্সট ଯିବା 5 नंबर प्रॉब्लम रे देखो अच्छा 5 नंबर प्रॉब्लम कोन देछि व्हाट इज द चार्ज इन कूलम 5 नंबर प्रॉब्लम छाड़ी दियो होला एटा सला फर्स्ट ला सेकंड ला तार रे प्रॉब्लम नेक्स्ट ଯିବା एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखो बिले इलेक्ट्रोलिसिस को जगह में अप्लाई करू छे फर्स्ट एप्लीकेशन देछि इलेक्ट्रोप्लाटिंग ओके इलेक्ट्रोप्लाटिंग कौन अच्छा आम देखो रोल गोल्ड गुड़ा सब जहाँ पिंधुंट मनकर गोटे रूपा हार ऊपर सुनार छाउनी दिखाई और रोल गोल्ड गुड़ा पिंधे सुना भाई देखा जाऊनि कि कौन ना सुनार छाउनी कोटिंग गोटे दि जाए गोटे रूपा हार ऊपर सुनार गोटे छाउनी दि जाए रूपा हार पिंधि है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये आम कहे इलेक्ट्रोप्लाटिंग है कि ये कौन करा सपोज मनकर मु कौन कहि गोटे रूपार चामच अच्छी से रूपा चामच उपरे आमे सुनार छाउनी देबा सुनार कोटिंग देबा किन देबा हेलो बुझि पाछ त यस सर हां सर रूपा चामच उपरे आमे सुनार कोटिंग देबा किन देबा ना त कोन करा हबो सुनार गोटे रड निया हबो आ रूपार चामच आमे नेबा हैला सुनार रड टा कोन निया हबो ना लेफ्ट साइड नबा जोडा एनोड रे नबा हैला जा ऊपर दबा का ऊपर दबा रूपार चामच ऊपर दबा से रूपार चामच तो हमें कैथोड रे नबा बुझे परछ माने राइट साइड नेबा हैला जा ऊपर देबा सेडो राइट साइड निया हबो आ जोडा देबा सेडो लेफ्ट साइड निया हबो हैला जदी सुनार हमें रूपार चामच ऊपर जे सुनार छाउनी देबा चामच टाकू जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो देखले ने फास्ट आमे से इलेक्ट्रोलिटिक सेल रो राइट साइड नेबा कैथोड रे नेबा हैला से प्रोसेस हम कोछि कोन इलेक्ट्रोप्लाटिंग देखा लिखाई कौन दिस इज डन फॉर डेकोरेशन बाय डिपोजिशन ऑफ गोल्ड सिल्वर ऑन बेसर मेटल एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेटल बाय डिपोजिशन निकेल क्रोमियम ऑन बेसर मेटल also broken part of metal are repaired by depositing the metals electrolytically बेसर मेटल माने मु कहली से रूपार चामच रे को जे बेसर मेटल आउ जो सुनार इड़ा नौचे कोंडा रड टा कहबा नोबेल मेटल डा बेसर मेटल ऊपर डिपोजिट हबो और ताका हम डेफिनेशन आकर प्रकाश कर परम द डिपोजिशन ऑफ नोबेल मेटल ऑन बेसर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लाटिंग हैला एडा होची गोटे इलेक्ट्रोलिसिस रो गोटे एप्लीकेशन माने नोबेल मेटल डा बेसर मेटल ऊपर डिपोजिट हबो ये आउ मन रखिबो क्वेश्चन पचारे नोबेल मेटल ला बेसर मेटल ऊपर जतरा डिपोजिट हबो नोबेल मेटल को साइड निया हबो नोबेल मेटल निया हबो एनोड आकार निया हबो जोटा हम लेफ्ट साइड आउ बेसर मेटल को साइड निया हबो राइट साइड निया हबो ताका हम कहबा कोन कैथोड कहबा हैला सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लाटिंग नोबेल मेटल इज टेकन एज एनोड एंड बेसर मेटल इज टेकन एट कैथोड ओके so this process is called electroplating this is the first application of electrolysis next second application देखिबा next page रे अछि next page देखो next page को अछि ना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज एटे बुझि जो खाली मु कहूची व्हाट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कौन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग देखा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है आम गोटे पाठ पढ़ा एक्सट्राक्शन ऑफ मेटल सेल तो हमर अच्छी गोटे चैप्टर है से पढ़ा सपोज आम कौन कर कॉपर एक्सट्राक्शन कर कॉपर जो आम एक्सट्राक्शन करवा और एल्युमिनियम जो एक्सट्राक्शन करवा बॉक्साइट एल्युमिनियम आसे एक्सट्राक्शन कर तार विभिन्न स्टेप दे से गति कर पूरा लास्ट स्टेप टा होची इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हैला से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन रे मध्ये कोन करा हुए ना हमर इलेक्ट्रोलिसिस रा एप्लीकेशन आसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन रे कोन लिखि देखो ना मेटल्स ऑब्टेन्ड इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रा मेटल माने मेटल रा में एक्सट्रैक्शन करा त मोया थाए
to purify the metal, pure metal जो पाइबा, to purify the metal like copper, silver, lead, etc. Electro refining process is used. से जगह हम electro refining process use करते हैं. In this process, a sheet of impure metal is made anode. In ए जगह कौन करा होची? Impure metal लगू anode आकार निया होची. If copper metal is to be refined, जब हमें copper metal refine करीबा, a sheet of copper, pure copper is pure copper ଶୁଭୁନି ସାର୍ सुबुनी ମତେ ଶୁଭୁଛି ସାର୍ आमे कौन करे मनर कॉपर को एक्सट्रैक्शन करू छरे बोलसे सुनो कॉपर जतल एक्सट्रैक्शन करा होची लास्ट प्रोसेस रे कॉपर टा प्योर कॉपर पाई परिबानी सेतल समय कोन कराबो इम्प्योर कॉपर टा को लेफ्ट साइड निया हबो आ प्योर कॉपर रॉड टा को निया हबो राइट साइड रे निया हबो इलेक्ट्रोलिक सेल रे लाइन बाय लाइन देखो हम पढुची if copper metal is to be refined a sheet of pure copper is made the cathode electrolyte used in solution of copper sulfate mixed with dilute copper sulfuric acid. Anode and cathode are connected to the positive and negative pole of the battery. Hela on passing current copper from the impure anode एथरे कोन हो लेफ्ट साइड impure copper नै छै राइट साइड प्योर copper नै छै आ मझिर कोन करा छै H2SO रो सॉल्यूशन निया छै impure copper रो copper रा ट्रांसफर हे कि डिपॉजिट हबो कोडे ना प्योर copper रा जाई डिपॉजिट हबो से प्रोसेस हम कहया कोन इलेक्ट्रोलिक रिफाइनिंग li कोहा हबो हला नेक्स्ट जिबा इलेक्ट्रो टाइपिंग रो मध्य इलेक्ट्रोलिसिस एप्लीकेशन अछि कोन reproduction of objects of art on woods wood carving काठ ऊपर विभिन्न प्रकार चित्र अंकिबा काठ ऊपर हमर ताका हम कहछ wood carving हला wood carving are connected to printing plates सेतर कोन करा विभिन्न प्रकार प्रिंटिंग प्लेट गुडा हो से काठ ऊपर छपे दिया जिवो हला से प्रिंटिंग प्लेट टा किन करा हो ना प्रिंटिंग प्लेट बाय इलेक्ट्रो डिपॉजिट मेथड impression of object of art is taken on the block of a wax मनोरा मन गोड फुलडी तयारी करिबा बेले से फुलडा हम गोड काठ पर तयारी करिबा बेले कोन करा हबा से फुलटा माने जो जाहिर करा हबा ताको हम कोन करा हबा impression of the object of the art is taken on the block of a wax गोड पठा आकार निया जिवो the impression of the wax is coated with graphite आताउ graphite rod रे से wax रो गुडे दिया जिवो displayed is a graphite rod निया हबो से graphite rod किछि अठा निया जिवो ता ऊपर गुळे देबा ताको केथोडा कर निया हबो हला आ एनोड इज कोन कॉपर प्लेट निया हबो कॉपर एली तको ए प्रोसेस हम कहबा इलेक्ट्रो टाइपिंग तुम ये पैराग्राफ टा पढले निजे बुझ पारिबो हला सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फारेस और इलेक्ट्रोलिसिस ओके सो हम आज कोन पढिले व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस then what is Faraday's law of electrolysis and application of electrolysis application of electrolysis kona na electroflatting electrotyping extraction of metals and in electrolytic refining etc application okay next period re padiba electrolytic conductance